Brampton Memorial Arena for the final days proceedings of the Kabaddi Rising Star League and the Pan American Kabaddi Championship 2025. What a tournament it's been. Today, lots of action coming up for you. First of all, we will have the third position match being played. Brampton Pace will take on Toronto Thunders, and they were excellent in their last league matches today. It's been a wonderfully organized tournament, hasn't it? Very well organized tournament, thanks mainly to the organizers, and Bobby Dillon, of course, deserves all the praise for the smooth conduct of this tournament. The technical officials, the referees, they have all done a fantastic job. Of course, the technical director, Gabriel, and I've got Milan with me, who of course is a fantastic kabaddi player, but here he is rocking everyone with his wonderful commentary, and to my left is Swami. She will of course introduce the players later. What a tournament it's been. It's been hectic. Whoa, way too close to my mouth there. But yeah, I wasn't expecting to see so much skill escape from the Indian subcontinent into the Ontario Peninsula. We're starting to see this sport start to get the recognition it deserves, and these athletes are putting in such bruising and bruising counters with one another. They're willing to sacrifice everything to get the title. We have seen some nail-biting finishes here. Excellent raids, excellent tackles. Yeah, some fixtures have gone right down to the wire, and neither side would be looking to surrender anything. They don't want to sacrifice points at the expense of a title. This is the inaugural tournament in North America, and to win here would be writing your name in the history books of such an ancient sport with a long legacy behind it. As expected, Ontario will be taking on the British Columbia in the national finals. That's going to be interesting today. Yeah, the home side will have a lot of support in the arena, that's for sure. But British Columbia, what a team they've been so far in this tournament. Seemingly unstoppable. We've seen Satish be a phenomenal raider, so I'm sure the home side will be looking to capture him. How is it going to be the league finals? The league finals, well, Mississauga Masters have been dominant. We've seen international talent come into the ranks. We've seen with Pascual and Mauro from Argentina. Together they've combined, they really reflect the character of that side. Strong raiding acumen, but defensive expertise combined with good discipline. This is a sport where discipline wins games, so that's why Mississauga are at the top. For me, it looks like they could do it, but I'm prepared for a shock as well. Bobby, we should also extend our gratitude to the Canadian government, for their excellent support, and of course the security personnel. They have done a fantastic job in the smooth conduct of the tournament, haven't they? Yes, they've done a wonderful job. Thank you so much to everybody that helped out. So it's for me to invite the players into the court now. Okay, I know you're all eager to see what's in store for today, so let's get started. I'd like to welcome to the first teams playing in today in the third position match between Brampton and Toronto. Please welcome to the court the Brampton Pace. No matter what, got money on my mind, I can never give it up. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah, and they say yeah. Cause all I do is win, and if you going in, put your hands in the air, and you stay there. Ludacris going in on the verse, cause I never been defeated and I won't stop now. Keep your hands up, in the sky for the homie that ain't making it in my folks like. The next team to join us on the court today is the Mississauga Masters. Sorry, the Toronto Thunders. We have to talk about the refereeing. It's been fantastic, hasn't it been? Led Yeah. by Emily. The matches have been officiated really well. There's obviously been some decisions which
has ignited some contestation from contesting from some of the sides, but they've handled it brilliantly, remained composed under pressure, and it's allowed the tournament to deliver its potential. It showcased the skills really well, and it's only down to the great officiating and organisation that we see behind the scenes. Now it's time for the toss. Your turn. नमस्कार, मैं सुधीर महावादी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं ब्रैम्पटन मेमोरियल एरिना से, जहां पे मैच शुरू हो चुका है। ये थर्ड पोजीशन के लिए ब्रैम्पटन पेस वर्सेस टोरंटो थंडर्स। एंड ब्रैम्पटन पेस का प्रदर्शन कल बहुत ही अच्छा रहा था। इन दोनों ने कल लास्ट लीग मैच खेले थे और ब्रैम्पटन पेस ने टोरंटो को हरा दिया, बट दे मिस द बस टू मेक इट टू द फाइनल्स। And this is the first quarter of the championship. Toronto won and Brampton are yet to open their account. This is the first क्वार्टर, ये पहला क्वार्टर है। हर क्वार्टर में 10 मिनट का टाइम रहता है खिलाड़ियों के पास पॉइंट्स हासिल करने के लिए। एंड ये थर्ड पोजीशन के लिए दोनों टीम्स खेलते हुए, और आज फाइनल होगा चैंपियंस लीग का वाटरलू वर्सेस बहुत ही बेहतरीन रीडिंग स्किल्स दिखाते हैं शानदार खिलाड़ी। एंड टोरंटो डिफेंस को थोड़ा सा प्रेशर में रखा था। बहुत ही बेहतरीन वहां पे एफर्ट और ये टैकल सक्सेसफुल। हरदीप का बहुत अच्छा सपोर्ट था और इस प्रकार से पॉइंट मिला यहाँ पे। टोरंटो थंडर्स थोड़ा सा प्रेशर में आए थे। पहला मैच बहुत ही अच्छा था उनका। 2-2। एक और रेड। ये पहला क्वार्टर है। बहुत ही बेहतरीन टैकल, कोई मौका नहीं वहां पे, और इस प्रकार से एक पॉइंट निर्भय सिंह को आउट कर दिया। एक और बेहतरीन टैकल, कोई मौका नहीं। आज हरदीप बेहतरीन फॉर्म में नजर आते हुए, बहुत अच्छा उनका सपोर्ट रहा है ब्रैम्पटन पेस के लिए। एज ए डिफेंडर खेल रहे हैं शुरुआत से। ये पहला क्वार्टर है। 3-3 स्कोर, एक रोमांचक मुकाबला। तीसरे पोजीशन के लिए मैच। रमनदीप बेहतरीन रेडर टीम में, दोनों तरफ रेड करते हैं, लेफ्ट और राइट कॉर्नर में। काफी अच्छा प्रदर्शन रहा ब्रैम्पटन पेस के लिए उनका। कैप्टन हरदीप आज काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं एज ए डिफेंडर। ऑल प्रेजेंट फॉर देम इन द कोर्ट। बोनस ऑन है, बोनस के लिए ट्राई किया लेकिन फिर से टैकल कर दिए गए। ब्रैम्पटन पेस की डिफेंस बहुत ही मजबूत है आज, कोई मौका नहीं दे रहे हैं। बहुत जबरदस्त टैकल्स करते हुए आज फाइनल होगा चैंपियंस लीग चैंपियंस का वाटरलू वर्सेस मिसिसागा के बीच में। इसके बाद खेला जाएगा। अब फिर से एक बार निर्भय सिंह भी बहुत ही खतरनाक रेडर है, लेकिन यहाँ पे टैकल कर दी गई। बहुत शानदार सपोर्ट
दोनों ने मिलकर उनको डैश कर दिया, कोई मौका नहीं दिए। ये पहला क्वार्टर है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेकिन एम्प्टी रेड। ये 4-4, बहुत अच्छा मुकाबला। क्विक रेड फिर से एक बार। रमनदीप और निरह मेन रेडर से। रमनदीप फिलहाल रेडिंग करते हुए, उन्होंने एक हैंड टच अप्लाई किया, लेकिन बहुत अच्छा टैकल वहां पे। फिर से एक बार महकदीप सिंह एज ए डिफेंडर इज इम्प्रेस्ड एवरीवन इन दिस टूर्नामेंट। एंड 5-4 स्कोर। बोनस ऑन नहीं है। 5 खिलाड़ी मौजूद है कोर्ट में। व्हाट अ टैकल अगेन। टैकल्स बहुत अच्छा करते हुए आज, और तारीफ करनी होगी खास करके हरदीप सिंह कप्तान की। इज लीडिंग द साइड वेल इन डिफेंस, और 1 पॉइंट का लीड उनके पास फिलहाल। ये पहला क्वार्टर है, 4 क्वार्टर्स होते हैं। निरह एंड रमनदीप मेन रेडर्स टीम में, उनके ऊपर काफी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। घेर लिए, लेकिन यहाँ पे एस्केप होने नहीं दिए। टैकल सक्सेसफुल एक बार फिर से टोरंटो का। 5-all स्कोर। थर्ड पोजीशन के लिए एक रोमांचक मुकाबला जारी है यहाँ पे ब्रैम्पटन मेमोरियल एरेना में। परमवीर सिंह रेडर, बोनस ऑन नहीं है, और हार्दीप को आउट करना चाहते हैं। हार्दीप पोजीशंस बदलते हैं, राइट से लेफ्ट, कभी सेंटर में खेलते हैं, कभी लेफ्ट इन बन के, कभी लेफ्ट कवर में, कभी राइट कवर में। बहुत अच्छा कैप्टन भी है। और यहाँ पे टैकल फिर से सक्सेस, एंकल होल्ड। लेफ्ट इन ने उसको इनिशिएट किया था, और इस प्रकार से एक और सक्सेसफुल टैकल। फास्ट पेस्ड एक्शन। 5 खिलाड़ी बचे हैं। फिर से एक बार रमनदीप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बहुत तेजी से लेकिन बेहतरीन टैकल। दोनों टीम्स की डिफेंस बेहतरीन अब तक, टैकल्स में ज्यादा पॉइंट्स कमाते हुए। नंबर 51 जसप्रीत साइनी इज एन ऑलराउंडर। उन्होंने कल बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया, लेकिन यहाँ पे एक और टैकल। टैकलिंग हैज बीन आउटस्टैंडिंग टुडे। दोनों टीम्स के टैकलिंग बेहतरीन है। जितने भी पॉइंट्स हासिल किए टीम्स ने, वो टैकल्स के द्वारा मिल गए उनको। रेड्स में अब तक सक्सेस देखने को नहीं मिला है। ये थर्ड पोजीशन के लिए मैच खेला जा रहा है ब्रैम्पटन एरेना में। एक किक अप्लाई किया जशनदीप सिंह, ऑलराउंडर टीम में। बैक होम इन इंडिया राजस्थान के लिए नेशनल्स भी खेल चुके हैं, जूनियर नेशनल्स भी खेल चुके हैं। एक फुर्तीला रेडर, काफी स्किल्स है उनके पास, लेकिन एम्प्टी रेड। 7-6 उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है फिलहाल। सतीश गोपाल एक उभरते हुए खिलाड़ी, इज बीन द स्टार ऑफ दिस टूर्नामेंट। बेहतरीन रेडिंग की उन्होंने, और अच्छे टैकल्स भी किए। मेरे ख्याल से द बेस्ट प्लेयर अवार्ड उनको मिल सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा है कमेंटेटर कर्स, यहाँ पे टैकल सक्सेस, एंकल होल्ड शानदार, डू और डे रेड, लेकिन बोनस ऑन नहीं है। 1 वर्सेस 4, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, और पॉइंट हासिल करना चाहिए, नहीं तो उनको सकम होना पड़ेगा। दोनों चेन सिस्टम बनाए हुए। 8-6 उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा लीड है। यहाँ पे फ्रंट बैकल, फ्रंट से बहुत ही बेहतरीन ब्लॉक। नंबर 47 ने उसको इनिशिएट किया, कैप्टन चरण कमाल ने। लेफ्ट कवर में मास्टर है टैकल्स करने में। 1 वर्सेस 6 बोनस ऑन है। चरण कमाल रेडिंग करते हुए, एज अ कैप्टन इज इम्प्रेस्ड एवरीवन विद हिज रेड्स, मेनली टैकल्स के साथ बहुत अच्छा इंप्रेस किया उन्होंने। बेहतरीन डिफेंडर टीम में, लेकिन कभी कभार एज ए रेडर भी पॉइंट्स हासिल करते हैं। 8-7 स्कोर, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 1.5 मिनट्स प्ले लेफ्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर। ये थर्ड पोजीशन के लिए खेला जा रहा है। रमनदीप काफी प्रेशर क्रिएट करते हैं डिफेंडर्स के ऊपर, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ट्रेड करते हुए, एंड कभी स्पीड सडनली बढ़ाते हैं। डुआडे रेड, बोनस ऑन है, लेकिन
बेहतरीन डिफेंस आज हरदीप सिंह टीम का, मौका नहीं दे रहे हैं बोनस लाइन क्रॉस करने के लिए। बाक लाइन के पास ही रेडिंग करते हुए प्रेशर रेडर के ऊपर, शानदार स्ट्रैटेजी यहाँ पे। और जैसे ही अंदर गए कैप्टन फ्रंट से आके ब्लॉक कर दिया उनको। हरदीप का एक और बेहतरीन टैकल ब्लॉक। हरदीप सिंह इंग्लैंड में भी कबड्डी खेलते हैं इंग्लैंड टीम के लिए, और यहाँ पे ब्रैम्पटन पेस के लिए खेलते हुए। कल ब्रैम्पटन पेस ने टोरंटो को हरा दिया था, एक अच्छा मैच रहा, लेकिन फाइनल में पहुंच नहीं पाए क्योंकि कल लास्ट लीग मैच वाटरलू वर्सेस मिसिसागा का काफी टफ मैच था और आखिर वाटरलू ने जीत लिया और फाइनल में प्रवेश किया। अगर वाटरलू हार जाते तो ब्रैम्पटन पेस को मौका मिलता था फाइनल में पहुंचने के लिए, क्योंकि उन्होंने -5 तक लाया अपने डिफरेंस को, स्कोर डिफरेंस को। एंड वाटरलू का -14 है, लेकिन 2 विक्ट्रीज उनके पास, इसकी वजह से फाइनल में पहुंच गए। 1 वर्सेस 4, 9-7, ज्यादा डिफेंस नहीं है फिलहाल। नंबर 7 इन एक्शन हियर, निर्भय सिंह क्विकली अपने पोजीशन, ये इजीली एस्केप किया उन्होंने। नंबर 57 ने जल्दबाजी दिखाई थोड़ी बहुत। फिर से एक बार परमप्रीत सिंह, एक और टैकल कैप्टन का। हरदीप इज ऑन सॉन्ग टुडे इन टैकल्स। उनको पार करना काफी मुश्किल रेडर के लिए। बहुत ही बेहतरीन टैकल्स उनके तरफ से देखने को मिला आज। एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, ब्रैम्पटन और 10, टोरंटो और 8। Action begins here. Second quarter is on. 10-8 is the score. Not much difference here. And Hardip का successful raid भी. Captain is on song today in tackling, in raiding. He is leading the side by example here. बेहतरीन रेडिंग भी कर रहे हैं और अच्छी शुरुआत यहाँ पे. What a raid from the captain Hardip. यहाँ पे गिनते हुए रेफरीज कितने खिलाड़ी आउट हो गए और अमनदीप को लाना पड़ रहा है उनको एज ए सब्स्टिट्यूट. अमनदीप वाज इंजर्ड यस्टरडे, उनको एंकल इंजरी भी है. एंड अमनदीप कम्स इन हियर एज ए सब्स्टिट्यूट. इज प्लेइंग टुडे. नंबर 56 is a wonderful raider, but Hardip Singh team is on song today. 15-8. Excellent tackles, excellent raids. ज्यादातर टैकल्स में बहुत अच्छा सक्सेस है उनकी टीम को. सतीश गोपाल फिर से एक बार राइट कवर में बहुत अच्छा डिफेंसिव स्किल्स भी दिखाते हैं. एंड he's had a fantastic tournament as a raider, as a defender. एंड एक असफल टैकल, जल्दबाजी दिखाई थी और इस प्रकार से ये मल्टीपल रेड रहा. उस गैप को फिल अप करने के लिए वही चाहिए उनको.
और निर्भय और रमनदीप ज़्यादातर रेडिंग करते हुए यहाँ पे अपने टीम के लिए 10-15। बोनस ऑन है। निर्भय सिंह दोनों कॉर्नर्स में बहुत ही बेहतरीन रेडिंग स्किल्स दिखाते हैं, बहुत अच्छा फुटवर्क इनका। और ये बोनस लाइन क्रॉस कर दिया उन्होंने, काफी प्रेशर क्रिएट किया वहां पे डिफेंडर के ऊपर। बोनस पॉइंट मिला उनको, 16 स्कोर। ये सेकंड क्वार्टर का एक्शन, थर्ड पोजीशन के लिए मैच खेला जा रहा है। ब्रैम्पटन एरिना इज द वेन्यू फॉर दिस चैंपियनशिप, कबड्डी स्टार लीग एंड पैन अमेरिकन चैंपियनशिप 2025। एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट, आज आखिरी दिन है और इसके बाद फाइनल्स होंगे और एक एग्जीबिशन मैच भी होगा। धीरे धीरे अपने पेस को बढ़ाया, लेकिन एम्प्टी रेड फिर से एक बार निर्भय तैयार होते हुए अपने रेड के लिए। बोनस ऑन है उनके लिए, सभी खिलाड़ी मौजूद टोरंटो के। ब्रैम्पटन ने कल टोरंटो को हरा दिया था बड़ी आसानी से, एक बेहतरीन मैच रहा, काफी स्कोरिंग का मैच। और ये सक्सेस अटेम्प्ट किया सक्सेसफुली यहाँ पे नंबर 46 महकदीप ने, और इस प्रकार से निर्भय आउट हो गए। डू और डाई रेड में अमनदीप, लेकिन बोनस उनके लिए ऑन नहीं है। 4 खिलाड़ी मौजूद है कोर्ट में, थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर रहेगा क्योंकि उनको इंजरी भी है अमनदीप को, इसलिए वो फुर्तीलापन नहीं है उनके रेडिंग में, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। और डीप गए और टैकल कर दिए गए। इज नॉट फिट एनफ टुडे, लेकिन खेलना पड़ रहा है थर्ड पोजीशन के लिए। एक रिवाइवल हुआ फिर से ब्रैम्पटन पेस टीम में। जशनदीप लंबे कद के खिलाड़ी, ऑलराउंडर के रूप में खेलते जशनदीप बुर्गा, इस फ्रॉम राजस्थान, बैक होम इन इंडिया। बोनस ऑन है, बोनस पॉइंट्स लेने में मास्टर भी है क्योंकि काफी लंबा रीच है इनका। उन्होंने ट्राई नहीं किया अभी। (17-11) ये सेकंड क्वार्टर का एक्शन। नंबर 52 फिर से एक बार सतीश गोपाल, ज्यादातर रेडिंग भी करते हैं और टैकल्स भी बहुत अच्छा किया उन्होंने इस टूर्नामेंट में। बहुत ही बेहतरीन एंकल होल्ड था। नंबर 5 हरमन ब्रार ने उसको इनिशिएट किया और उसके बाद हरदीप से सपोर्ट मिला फ्रंट साइड से, और टैकलिंग में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए ब्रैम्पटन पेस की टीम आज। एक और क्विक रेड फिर से एक बार रमनदीप द्वारा, और एस्केप भी किया बड़ी आसानी से। अच्छा फुटवर्क है उनके पास। और 47 रेडी होते हुए चरण कमाल कैप्टन ऑफ द साइड, लेफ्ट कवर में काफी अच्छा डिफेंसिव स्किल दिखाते हैं। एज ए रेडर पॉइंट्स चाहिए, प्रेशर है क्योंकि लीड बढ़ रहा है। ज्यादातर लेफ्ट साइड में रेडिंग करते हैं। एक टच हैंड किया, लेकिन ये सक्सेसफुल टच था वो, और इस प्रकार से एक अंक मिला टोरंटो को। रमनदीप और निर्भय दोनों रेडिंग्स ज्यादा करते हुए। रमनदीप इन एक्शन हियर, काफी क्विक फुटवर्क है इनके पास, बहुत तेजी से पोजीशंस बदलते हैं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, और इजी एस्केप अगेन। जलबाजी वहां पे डिफेंडर का। अमनदीप रेडी होते हुए। अमनदीप की फिटनेस 100% नहीं है आज, जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए। एक बेहतरीन रेडर, लीग मैचेस में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था, बट इंजरी की वजह से वो फुर्तीलापन नहीं है उनकी रेडिंग में आज। एक किक अप्लाई किया सेंटर पे और सक्सेसफुल भी रहा, और यहाँ पे हरमन ब्रार को बाहर जाना होगा। एक सक्सेसफुल किक ऑन द सेंटर। रमनदीप फिर से एक बार 20-13 एक अच्छा लीड फिलहाल ब्रैम्पटन के पास। ये सक्सेसफुल रेड हो सकता था, लेकिन फ्रंट साइड से बहुत अच्छा ब्लॉक हुआ। काफी ट्राई किया वहां पे निर्भय ने एस्केप करने की, लेकिन फ्रंट साइड से ब्लॉकिंग अच्छा रहा, और इस प्रकार से टैकल सक्सेस। गोपाल, सतीश गोपाल, जूनियर नेशनल्स खेलने का एक्सपीरियंस है बैक होम इन इंडिया।
बेहतरीन प्रदर्शन रहा इस प्रतियोगिता में उनका। एज ए रेडर, एज ए डिफेंडर, इम्प्रेस्ड एवरीवन। एक ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं यहाँ पे। जल्दबाजी फिर से एक बार, वो नहीं करना चाहिए। रमनदीप आउट हो गए, वन ऑफ द मेन रेडर्स। मनिंदर सिंह, ये पहला रेड है उनके लिए, पहली रेड उनके लिए। सभी खिलाड़ी मौजूद, बोनस ऑन है उनके लिए। काफी डीप जाके खेलते भी हैं, वो क्षमता उनके पास है। यहाँ पे एस्केप किया, ये रीच करने का उनका प्रयास लेकिन हो नहीं पाए। पकड़ अच्छी थी वहां पे। He tried his best to touch the midline. और इस प्रकार से एक और सक्सेसफुल टैकल। सतीश गोपाल 1 वर्सेस 3। इसका मतलब यह है कि सुपर टैकल ऑन है। हरदीप का प्रदर्शन बेहतरीन है एज ए डिफेंडर, एज ए कैप्टन। क्या सुपर टैकल करने की कोशिश करेंगे? यस, सक्सेसफुल सुपर टैकल रहा। नंबर 4 मनजिंदर ने उसको इनिशिएट किया और उसके बाद सपोर्ट मिला हरदीप सिंह कैप्टन से, फ्रंट तरफ से। हरदीप सिंह is on song today as a captain. The lead is increasing. Pressure on the Toronto here, and this can be a successful raid. लेकिन एक खिलाड़ी मेरे ख्याल से देखना होगा कि लाइन भी क्रॉस किया था 51, but referees will check that. Jaspreet Saini, I think Emily is checking that. The main referee. शेड भी बाहर निकल के आगे, कभी कभार ऐसा होता है खेल में। एज ए रूल शेड को खींचना नहीं चाहिए, लेकिन वो एक्शन में हुआ मेरे ख्याल से। That's why a bit of warning here from Emily to the player. महकदीप सिंह वाइस कैप्टन को वार्निंग देते हुए, and I think she's showing the card also. Green card shown. He has to be careful now rest of match में। महकदीप सिंह को ग्रीन कार्ड दिखाया गया, but they are filling the gap nicely here. Toronto 16, Brampton 24. This is the match for the third position. आज आखिरी दिन है इस प्रतियोगिता का, and we have seen some excellent matches. कुछ नेल बाइटिंग फिनिशेस देखने को मिले। यहाँ पे जल्दबाजी, क्या हरदीप का भी टच है, देखना पड़ेगा। यस, मल्टीपल, हरदीप को आना पड़ा वो ब्लॉक के लिए, लेकिन उस समय तक पहुंच चुके थे लाइन के पास रेडा। इस प्रकार से 2 पॉइंट्स मिले, रिवाइवल भी हुआ। नंबर 7 निर्भय इन एक्शन हियर, वन ऑफ द मेन रेडर्स है टीम में निर्भय। बोनस लाइन क्रॉस किया, बोनस पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे सुपर टैकल ऑन है, 1 वर्सेस 3, लेकिन कैप्टन नहीं है फिलहाल। क्या इनिशिएट कर पाएंगे? यस, नंबर 10 जशनदीप ने 2 पॉइंट्स लाया। वहां पे दिलबाजी दिखाई थी जशनदीप ने। इस प्रकार से 2 पॉइंट्स, मल्टीपल रेड अगेन, और ऑल आउट करने के लिए एक अच्छा मौका टोरंटो के पास। एंड दे कैन रीच टू 21, 24-18 स्कोर। एक बेहतरीन मौका है। नो नीड टू टेक रिस्क बिकॉज निर्भय इज अ वेरी गुड रेडर, एंड आउट भी किया यहाँ पे, और एक रिवाइवल भी होगा उनके लिए। सक्सेसफुल रेड निर्भय की तरफ से। Making some errors here in defense, Toronto Thunders, but they have been outstanding in raiding in this quarter. Super tackle on again. सुपर टैकल ट्राई करेंगे, ये ट्राई किया, लेकिन ये मल्टीपल रेड और पाला खाली। इस प्रकार से 4 पॉइंट्स मिल गए टोरंटो को। 24 उनका स्कोर, गैप भी फिलअप हो गया, केवल 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है। एंड ऑल्सो एंड ऑफ क्वार्टर 2 हियर, ओनली आखिरी रेड होगा ये। बोनस का क्रॉस, काफी तेजी से रेडिंग करते हैं रमनदीप, वन ऑफ द फाइनेस्ट रेडर्स इन द टूर्नामेंट। एक लो किक उन्होंने अप्लाई किया, और इस प्रकार से सेकंड क्वार्टर समाप्त हो चुका है। एट द सेकंड क्वार्टर 26-24 इज द स्कोर। You need water?
Welcome back. Number 6 getting ready. Ramandeep, sides बदल गए, left to right Brampton Pace और right to left Toronto Thunders. अपना स्पीड बढ़ा दिया रेड का 26-24. बहुत अच्छा कमबैक किया टोरंटो ने दूसरे क्वार्टर में. एक लो क्विक राइट कॉर्नर पे, लेकिन एम्प्टी रेड है. अमनदीप रेडी होते हुए, आज उनका फिटनेस 100% नहीं है. कल उनको इंजरी हुई थी, एंकल इंजरी. ये थर्ड पोजीशन के लिए मैच खेला जा रहा है, इसलिए ज्यादा जोखिम नहीं उठा रहे हैं. और ये सक्सेसफुल रेड, मल्टीपल रेड गिनते हुए वहां पे रेफरी. कितने खिलाड़ी आउट हो गए देखना पड़ेगा. एमली इज काउंटिंग द मेन रेफरी. One point given to the Toronto team, and captain Hardeep has to go out of the court. Number 7 Nirhay Singh. Good start again Toronto के लिए. ये तीसरा क्वार्टर है. निर्भय भी अपने पेस को बढ़ाते हैं. एक किक अप्लाई किया, फिर से एक बार राइट कॉर्नर पर एंड राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट. बेहतरीन स्किल से दिखाते हैं. एक और टच, हैंड टच, रनिंग हैंड टच. काफी दबाव में रखते हैं डिफेंडर्स को, बट इज लॉस्ट हिज कंट्रोल्ड. उनको संतुष्ट रहना चाहिए था, बट मल्टीपल रेड के लिए उन्होंने कोशिश की और असफल. नंबर 47 चरण कमाल, द कैप्टन ऑफ टोरंटो थंडर्स, रेड्स स्लोली, कंफर्टेबली, इत्मीनान से रेडिंग करते हैं. कोई प्रेशर नहीं रहता है रेडिंग करते समय उनके ऊपर, बड़े आराम के साथ. स्कोर्स इक्वल हियर, 26 ऑल. थर्ड क्वार्टर एक्शन इज ऑन. एम्प्टी रेड एंड नंबर 8 वहां पे नरमान. बॉकलाइन क्रॉस किया, वो इंपॉर्टेंट है कबड्डी में. ये सक्सेसफुल टैकल है, डबल एंकल होल्ड बैक साइड से, बेहतरीन. हर्ष जायसवाल ने उसको अप्लाई किया था. 47 चरण कमाल अगेन द कैप्टन, इज डूइंग लॉट ऑफ रेडिंग. ये थाई होल्ड सक्सेस, बेहतरीन थाई होल्ड इस बार जशनदीप सिंह का. सोलो थाई होल्ड था. बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं टीम में. नंबर 6 रमनदीप, बोनस ऑन है उनके लिए, लेकिन चेन बनाए हुए 2-2 की उनको टैकल करने के लिए, और बोनस के लिए मौका नहीं दे रहे हैं क्योंकि स्कोर्स इक्वल है फिलहाल, और दोनों के लिए चांस है थर्ड पोजीशन हासिल करने के लिए. फिलहाल एक रोमांचक मुकाबला जारी है. 52 तैयार वहां पे सतीश गोपाल, हमेशा की तरह. ये टच सक्सेस ऐसा लग रहा था. Referee is stopping there. Technical timeout taken here. 27 all score. Toronto tried to return the favour, but too much had happened. The refs needed a breather. 27 all score. ये टेक्निकल टाइम आउट, थर्ड क्वार्टर का एक्शन जारी है. नंबर 52 सतीश गोपाल, अपना रेड उन्होंने शुरू किया. एक अच्छे ऑलराउंडर टीम में एज ए रेडर, एज ए डिफेंडर उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया. जब वे रेडिंग करते हैं तो काफी प्रेशर होता है डिफेंडर्स के ऊपर. हरदीप अपने पोजीशंस बदलते हैं, कभी राइट कॉर्नर में, कभी राइट इन में, कभी सेंटर में, कभी लेफ्ट कॉर्नर में. हर पोजीशन में डिफेंस करने का उनके पास एबिलिटी है. डू और डाई रेड में रमनदीप, बोनस ऑन है उनके लिए, एक अच्छी बात है. और जैसे ही अंदर गए वहां पे सक्सेस हुआ कि नहीं देखना पड़ेगा. डैश सक्सेस ऐसा लग रहा है, बट रविंदर वहां पे काउंट करते हुए खिलाड़ियों को. एंड एक और टेक्निकल टाइम आउट यहाँ पे, बिकॉज एमली
was not happy there. Was it a successful raid or a successful tackle? लॉबी का उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया. The referees are in discussion here. And 1 point दिया गया. तो एक रिवाइवल भी होगा ब्रैम्पटन के लिए. सक्सेसफुल रेड था वो. अमनदीप फिर से एक बार. काफी लंबा रीच रहता है इनका. लंबे कद के खिलाड़ी है. बोनस ऑन की आने डू और डाई रहे. अभी सुना उन्होंने, तो बोनस के लिए ट्राई करना चाहिए, लेकिन ट्राई करने नहीं दे रहे हैं फिलहाल. मजबूत डिफेंस आ रही है. घेर लिए गए. बेहतरीन ब्लॉक और टैकल. नंबर 12 ने उसको इनिशिएट किया था, मनिंदर सिंह ने. डुआडाई रेड में रेडर के ऊपर प्रेशर रहता है. रमनदीप बहुत ही जबरदस्त फुटवर्क इनका. लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, काफी तेजी से रेड करते हैं. हमेशा डिफेंडर्स के ऊपर दबाव डालने की कोशिश उनकी जारी रहती है. एम्प्टी रेड. सतीश गोपाल गेटिंग रेडी. 27-29 लीड फॉर ब्रैम्पटन. दे वर ट्रेलिंग इन द फर्स्ट क्वार्टर, लेकिन अच्छा कमबैक किया. सतीश नॉट टेकिंग रिस्क, और ये एंकल होल्ड. उसके बाद ये डैश करना चाह रहे थे एंड रेफरी इज काउंटिंग. मल्टीपल रेड है वो. एक और मल्टीपल रेड टोरंटो के लिए. टोरंटो और रियली प्लेइंग वेल नाउ. नंबर 7 निर्भय सिंह काफी डीप जाके खेलते हैं. निर्भय से खेलते हैं. और यह टच, हैंड टच वो क्लेम करते हुए. बोनस भी ऑन है उनके लिए. राइट टू लेफ्ट जैसे ही आए, मौका मिला वहां पे डिफेंडर्स को टैकल करने के लिए, और आसानी से टैकल किए. परमप्रीत ने उसको इनिशिएट किया था. 1 versus 4, 29 ऑल. ये थर्ड क्वार्टर का एक्शन है. ज्यादा समय भी नहीं है फिलहाल, लेकिन एक रोमांचक मुकाबला जारी है थर्ड पोजीशन के लिए. कल बेहतरीन प्रदर्शन दिखाए थे ब्रैम्पटन पेस ने टोरंटो के विरुद्ध, और ये सक्सेसफुल रेड, ये सुपर रेड ऐसा लग रहा है फिलहाल. ये इट इज ए सुपर रेड. 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट कर दिया. एक बचे हैं जशनदीप के रूप में, और ऑल आउट के लिए एक अच्छा मौका यहाँ पे ऑल आउट करने के लिए टोरंटो को. बट जशनदीप एक बेहतरीन ऑलराउंडर, एक किक अप्लाई किया उन्होंने नंबर 49 परमप्रीत जीत पर. काफी दबाव में फिलहाल जशनदीप. ये टैकल भी सक्सेस, और इस प्रकार से 3 अंक मिल गए. 36-29 ऑल आउट कर दिए. सडनली दबाव में आते हुए ब्रैम्पटन पेस की टीम, और एक खिलाड़ी को इंजरी भी हुई है, और एक यहाँ पे मेरे ख्याल से खिलाड़ी को आना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट के रूप में. नंबर 7 इज गोइंग आउट, निर्भय, एंड नंबर 2 इज कमिंग इन, गुरतेज ब्रारा. ही इज ऑल्सो द मैनेजर ऑफ द टीम, वन ऑफ द सीनियर प्लेयर्स इन दिस कॉम्पिटिशन. काफी एक्सपीरियंस उनके पास है, और उनका एक्सपीरियंस चाहिए आज ब्रैम्पटन पेस को, क्योंकि फिलहाल पिछड़ते हुए 6 अंकों से. काफी अच्छी शुरुआत रही थी. फर्स्ट क्वार्टर में डोमिनेट किया था उन लोगों ने, लेकिन सडनली दबाव में आ गए सेकंड क्वार्टर में, और थर्ड क्वार्टर में भी टैकल्स अच्छे नहीं कर पा रहे हैं. – 36-30 score. This is the third quarter, a match for the third position between these two teams. Brampton tried their best yesterday to make it to the finals. एक बड़ा विक्ट्री उन्होंने हासिल किया था, लेकिन वो इनफ नहीं था उनके लिए, क्योंकि वाटरलू ने आखिरी लीग मैच में मिसिसागा को हरा के फाइनल में प्रवेश किया. अगर वाटरलू हार जाते तो एक मौका रहता था ब्रैम्पटन के पास.
47 getting ready. Charan Kamal, captain. Charan Kamal leading by example. All present. Bonus is on. बॉकलाइन क्रॉस किया, वो मैंडेटरी रहता है कबड्डी में. ये हैंड टच का प्रयास गुरतेज ब्रारा के ऊपर. गुरतेज लेफ्ट इन में खेल रहे हैं. इज अ वेरी गुड डिफेंडर. He also led in the nationals. ये जल्दबाजी और ये सक्सेस. सही समय में वहां पे सपोर्ट मिला गुरतेज ब्रार से. एज ए सब्स्टिट्यूट ही केम एंड ये शोन his skill here. अनुभव जिसके बारे में हम बता रहे थे काफी काम आया उनके लिए. एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है. व्हाट ए सपोर्ट ही गॉट. ऐसा लग रहा था कि वो एस्केप कर पाएंगे लेकिन होने नहीं दिया. अब नंबर 6 रमनदीप. बोनस ऑन है उनके लिए. हैंड टच का प्रयास वहां पे कवर पर, राइट कवर पर. ब्रैम्पटन पेस. yesterday they were outstanding against Toronto. गुरतेज आते ही उन्होंने अपना कमाल दिखाया. लेफ्ट इन में एज ए डिफेंडर इज बीन आउटस्टैंडिंग. और एक नेशनल टीम को भी उन्होंने लीड किया था. सतीश गोपाल फिलहाल बोनस ऑन है उनके लिए. धीरे धीरे बोनस लाइन क्रॉस करने के लिए कोशिश जारी है उनकी. एंड इज ऑल्सो गॉट ए बोनस पॉइंट फॉर हिज टीम हियर. एंड दे हैव गॉन टू 37 फ्रॉम 36. एंड गुरतेज इज ऑल्सो ए गुड रेडर. एक्सपीरियंस काफी है उनके पास. प्लेइंग कबड्डी फॉर नंबर ऑफ इयर्स. बोनस ऑन है उनके लिए. धीरे धीरे लीडिंग करते हैं और उसके बाद स्पीड बढ़ाते हैं, पेस बढ़ाते हैं. इजी टैकल, इजी टैकल. वो फुर्तीलापन आज नहीं है क्योंकि लगातार खेलना पड़ रहा है खिलाड़ियों को डे 1 से. वो भी एक कारण हो सकता है. थकावट है खिलाड़ियों में. चरण कमाल कैप्टन है. लेफ्ट कवर में एज ए डिफेंडर अच्छा काम किया. टैकल सक्सेस एक और. नंबर 8 नरमान ने उसको इनिशिएट किया था. सक्सेसफुली टैकल कर लिए गए. एंड ये थर्ड क्वार्टर भी समाप्त हो चुका है. 37-32 इन फेवर ऑफ टोरंटो. Fourth quarter action is about to begin. 33-36. Toronto have done well in the last 2 quarters. ये ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच चल रहा है. थर्ड पोजीशन के लिए कौन जीतेंगे. कल ब्रैम्पटन ने हरा दिया टोरंटो को एंड उसी फीट को रिपीट कर पाएंगे. और यहाँ पे टोरंटो का कमबैक भी अच्छा रहा. ये सक्सेसफुल रेड, मल्टीपल रेड लग रहा है. नो, ओनली 1 पॉइंट सेज द रेफरी. So good start here. Brampton. Hardeep has led well example as a defender, as a raider, as a captain. 2 points का difference है फिलहाल. और गोपाल फिलहाल रेडिंग करते हुए. जूनियर नेशनल्स ही played and ये असफल. Easily escape किया. नरमान ने जल्दबाजी दिखाई वहां पे. थोड़ा टाइम लेना चाहिए था उनको टैकल करने के लिए. 9 minutes left. Number 12 मनिंदर सिंह.
bonus on for him. Will he try for that? 37-34 चाहिए उनको पॉइंट्स उस गैप को फिल करने के लिए. They have to take risk क्योंकि प्रेशर बढ़ता जाएगा. आखिरी क्वार्टर है. यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन हैंड टच सेंटर के ऊपर. वेरी क्लेवर रेड ऑल्सो. काफी समय लिया उन्होंने और आखिरी क्षण में उन्होंने उस टैकल को अप्लाई किया, उस हैंड टच को अप्लाई किया और इस प्रकार से 35-37. सर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना 5-7 मिनट. 8 minutes play left in the last quarter. Not much difference here. 35-37, only 2 points lead. Ramandeep in action here. Faced with a 5-man. बेहतरीन रेडर है टीम में. एक टैकल असफल. जल्दबाजी फिर से एक बार. चरण कमाल एक फर्स्ट क्लास डिफेंडर है टीम में. लेफ्ट कवर में खेलते हैं वे. अमनदीप केवल 1 पॉइंट का डिफरेंस फिलहाल. अमनदीप आज उतना एक्टिव नहीं है क्योंकि उनको इंजरी हुई है कल. एक और टैकल. जैसे ही मैं कह रहा था अमनदीप का फिटनेस 100% नहीं है आज. उनकी रीडिंग में क्लियरली दिखाई देता है. और स्कोर लेवल हियर 37 ऑल. गुड कमबैक. हरदीप द कैप्टन इन रेड. सुपर टैकल इज ऑन हियर. क्या दोनों को आउट करके 4 पॉइंट्स हासिल करने का एक मौका है, लेकिन सेफली वापस चले गए क्योंकि उनका डिफेंस काफी अच्छा है. दे डिपेंडेड मेनली ऑन देयर डिफेंस टुडे. ये सक्सेसफुल था, लेकिन एक खिलाड़ी मेरे ख्याल से लाइन भी क्रॉस किए थे. देखना पड़ेगा कि किसने इनिशिएट किया था उसको. अननेसेसरी अटेम्प्ट था. बिल्कुल बैक लाइन क्रॉस करने के बाद मिडिल लाइन के पास आ गए थे एस्केप करने के लिए. उस समय उन्होंने टैकल अप्लाई किया. ऐसा नहीं करना चाहिए. इंतजार करना चाहिए डिफेंडर्स को. एंड ग्रीन कार्ड हियर टू द कैप्टन हरदीप. हरदीप लेड बाय एग्जांपल. आज बेहतरीन फॉर्म रहा उनका एज ए डिफेंडर, एज ए कैप्टन. शानदार स्किल से दिखाया उन्होंने. 37-37 स्कोर. नंबर 6 रमनदीप stopped by the referee. पूछा कि आप टाइम आउट लेना चाहते हैं. एमली ने पूछा, but they don't want that क्योंकि समय भी नहीं है उनके पास. मेरे ख्याल से हो गए उनके 2 टाइम आउट्स हो चुके हैं. स्पीड को बढ़ाया फिर से रमनदीप. ये उनकी खासियत है, धीरे से शुरू करते हैं और दोनों कार्नर्स में रेड करने का एबिलिटी उनके पास है. जैसे कि आप देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट. फिर से एक बार ये टैकल सक्सेस. आखिरी क्षण तक रेड करना चाह रहे थे, बट ही वाज लूजिंग कंट्रोल, लूजिंग बैलेंस, लूजिंग एनर्जी, रनिंग आउट ऑफ एनर्जी. उसका फायदा उठाया वहां पे डिफेंडर्स ने. टोरंटो के पास 2 पॉइंट्स का लीड है फिलहाल. एक अच्छा लीड कहा जाता है. ऑफ कोर्स ब्रैम्पटन कैन मेक ए कमबैक. सेंटर में कैप्टन हरदीप जैसे नंबर 3 आप देख सकते हैं कि कितना एक्टिव रहते हैं. लेकिन ये टच सक्सेस. गुरुतेज को बाहर जाना होगा. एंड जशनदीप तैयार हो रहे हैं फिलहाल. नंबर 10 ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं टीम में. बोनस ऑन है उनके लिए, एक अच्छी बात है. बोनस के लिए ट्राई कर सकते हैं. रीच लंबा है उनका, लेकिन ये असफल. जल्दबाजी फिर से एक बार डिफेंडर की. महकदीप सिंह बहुत मिस्टेक्स किए आज और चोट भी लगी है उनके हेड पर थोड़ी सी.
टैकल करते समय गोपाल सतीश राइट कवर में एज ए डिफेंडर एंड एज ए रेडर आउटस्टैंडिंग स्किल्स दिखाते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, जूनियर नेशनल्स खेल चुके हैं भारत में। ये टच किया उन्होंने लेकिन सक्सेसफुल नहीं था। एक और असफल टैकल, जशनदीप सिंह ने उसको इनिशिएट किया और बहुत जल्दी उन्होंने शुरू किया एंड बोनस लाइन क्रॉस कर दिया ऐसा लग रहा है। टो टच का भी प्रयास, नंबर 53 उनका टारगेट है कुंदर, लेफ्ट कॉर्नर में फर्स्ट क्लास डिफेंसिव स्किल्स है उनके पास। हरदीप इज इन टेरिफिक फॉर्म टुडे, वेरी एक्टिव एंड इज गॉन डीप एंड मौका मिला वहां पे खिलाड़ियों को उनको घेरने के लिए। वो मौका दिया उन्होंने डिफेंडर्स को, सकम होना पड़ा था उनको। बोनस वेदर ही हैज क्रॉस्ड और नॉट, रेफरीज आर चेकिंग दैट। मेरे ख्याल से बोनस क्रॉस किया था ऐसा लग रहा है, बट डिफिकल्ट टू से फ्रॉम हियर एंड द रेफरीज इन डिस्कशन। एक पॉइंट उनको भी मिल सकता है और फिलहाल टोरंटो के पास एक अच्छा मौका ब्रॉन्ज जीतने के लिए, डिफरेंस ज्यादा है, 4 पॉइंट्स का डिफरेंस। 4 points is a very good lead for them at this juncture of the match. So only referees are still in discussion. बोनस क्रॉस किया कि नहीं है, अगर बोनस पॉइंट मिल जाता है तो 39 होगा, 43 होगा, बट हरदीप आउट हो चुके हैं, उनको टैकल कर दिए गए। मनीषा, हरदीप एंड एम्बली आर स्टिल सीरियसली डिस्कसिंग। और यस 1 पॉइंट, 1 पॉइंट मिला बोनस का ब्रैम्पटन को और 1 मिला टैकल के लिए टोरंटो को। बोनस भी दिया गया है। Emily is still in discussion with Satish. They are not happy. Brompton, वो कह रहे हैं कि बोनस लाइन क्रॉस नहीं किया उन्होंने, टच किया था, बट आफ्टर डिस्कसिंग विद द लाइन एम्पायर्स एंड द सेकंड रेफरी, एमिली ने निर्णय लिया कि बोनस क्रॉस किया उन्होंने। नो बोनस says now. So 3.5 minutes play left. सतीश गोपाल बेहतरीन रीडिंग स्किल्स दिखाए फिर से एक बार आज। सुपर टैकल ऑन है, सुपर टैकल चाहिए और सुपर टैकल सक्सेसफुल होगा। नो 5 पॉइंट सक्सेसफुल रेड, सुपर रेड हुआ है ये, और यहां से 43 से 48 तक चले गए। अब उनको रोकना मुश्किल होगा, ये गैप को फिलअप करना काफी मुश्किल ब्रैम्पटन के लिए, काफी प्रेशर उनके ऊपर। अब सुपर रेड चाहिए उनको, जशनदीप रेडिंग करते हुए, एंड जशनदीप का ये सक्सेसफुल रेड हो सकता है, लेकिन टैकल सक्सेस, सपोर्ट अच्छा मिला, ब्लॉक बेहतरीन ढंग से किया गया फ्रंट साइड से। एक और अंक 50 के करीब आगे, 10 पॉइंट डिफरेंस इज ए ह्यूज डिफरेंस नाउ एट दिस मोमेंट। 2.5 मिनट्स प्ले लेफ्ट। सतीश गोपाल, अब उनको सिर्फ टाइम किलिंग स्ट्रेटेजी चाहिए, क्योंकि समय उनके पास, लीड उनके पास है, वही काम कर रहे हैं फिलहाल सतीश गोपाल। काफी एक्सपीरियंस है, जूनियर नेशनल्स खेल चुके हैं भारत में, हरियाणा के लिए रिप्रेजेंट किए। वेरी गुड स्ट्रेटेजी, ऐसे ही करना चाहिए। बाग लाइन क्रॉस किया, वो इंपॉर्टेंट होता है, एंड आखिरी क्षण तक रेड करना, जस्ट किलिंग द टाइम हियर, वेरी गुड स्ट्रेटेजी। लेकिन यहाँ पे मनिंदर को अपने पेस को बढ़ाना होगा, सुपर रेड्स चाहिए कमबैक के लिए, लेकिन सुपर रेड के लिए मौका मिलेगा। नो टच, एक को टच किया था, एक इन हुआ, बट एक पॉइंट काफी नहीं है रिमेनिंग टाइम में। अमनदीप डुआडे रेड में बोनस के लिए उनको मौका है, क्योंकि सभी खिलाड़ी मौजूद है और बोनस के लिए ट्राई कर सकते हैं। काफी लंबा उनका रीच है, लेकिन आज उतना फिटनेस नहीं है उनका, जैसे कि हम देख रहे हैं, वो फुर्तीलापन नहीं है उनकी रीडिंग में। और यहाँ पे मौका था वहां पे गुरतेज के पास ब्लॉक करने के लिए, और ब्लॉक कर दिए गए। क्लियरली सकम्ड अंडर प्रेशर। 1 more point here to Brampton.
will they fill that gap? 8 points ka difference. Maninder in action here and he's been tackled successfully. Single ankle tackle tha wo. Or 50 is the score, Toronto. They have reached that figure. Charan Kamal, the captain, he's been outstanding today in raids, in tackles. As a captain, he is led by example. और उनकी टीम ब्रॉन्ज मेडल के बिल्कुल करीब आ गए. केवल 40 सेकंड्स का खेल बचा है. 1-2 रेड्स देखने को मिलेंगे. यहाँ पे सुपर टैकल्स का भी जरूरत है. सुपर रेड चाहिए वहाँ पे. Brampton 42, 50 Toronto, almost on the verge of winning the bronze medal here. Good strategy again by Charan, the captain. Super रेड चाहिए, गुरतेज. और यहाँ पे मौका दिया 2 रेड के लिए. 51. What he has to do? Cross the bog line, spend the time, rest of the time in the court. Out भी होके एक पॉइंट भी दे सकते हैं. They have that chance. No need to go take rest. And he has won the point. इस प्रकार से टोरंटो थंडर्स ने ब्रैम्पटन पेस को हरा दिया, ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, 3rd पोजीशन हासिल किया. कंग्रेचुलेशंस टू टोरंटो थंडर्स.